Good morning, all of you. Sorry for the 10 minutes late. My system internet was giving some trouble. This morning, I welcome to all of you. Today, our networking, internet services, and search engines, as well as social networks. Today, I want to enter directly in class. Today topic. आज का क्लास में मैं डायरेक्टली टॉपिक के बारे में जाना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट समय बीत चुका है. So friends, in last class we had discussed about the internet email services. What is meant by the email, electronic mail? So if you want to send or receive a mail, then first of all, what do we have? Last 2 days onwards, I am telling, if a person want to send a mail to others, or if you want to receive a mail from the others, then that particular person must and should have an email ID. दुनिया पर कोई भी इंसान इंटरनेट का माध्यम से एक ईमेल को भेजना चाहते हैं या किसी से ईमेल को रिसीव करना चाहते हैं, तो पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ईमेल अकाउंट. अगर ईमेल नहीं तो फिर क्या करेगा वो? कई बार इमरजेंसी में अपना दोस्त का किसी और का ईमेल आईडी बताते रहते रेफरेंस में. Sometimes what happen, if they want to receive an urgent matter, that particular person cannot have any email ID, then that time they can give their friends or their relatives, brothers, sisters, fathers, whatever it may be, they are giving other people's email ID. So to avoid this type of situations, इस तरह समस्या को दूर करने के लिए, हमेशा के लिए अपना आप इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप में कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल आईडी होना जरूरी है, especially in students, employees. The person is working in anywhere, if it is in a big industry or small industry or medium, whatever it may be, the person having an email ID, then that is helpful to communicate with the entire world. एक इंसान का पास ईमेल आईडी है तो फिर वो दुनिया से किसी से भी कई कॉर्नर से भी किसी से भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. स्पेशली मीन्स प्रत्येक रीति से अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स का जीवन में एम्प्लॉय से है, वह छोटा है, बड़ा है, माध्यमिक मीन्स मिडिल कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉय नहीं है, विद्यार्थी भी है, इंसान भी है. अगर कंप्यूटर लिटरेसी नॉलेज है इसका पास, तब ईमेल आईडी होना जरूरी है. हाउ टू क्रिएट द ईमेल आईडी? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सम ऑफ द free services websites are there. gmail.com, hotmail.com, yahoomail.com, like rediffmail.com. They are offer email communication with the free of cost. Okay, so now friends, after that, how to create an email ID? Then once you are entered the email ID with the password, inbox, that snows, then after that send, sign in, sign out, attachment, body. So all these things I have already explained. Still to date, up to date, आज तक अगर किसी के स्टूडेंट्स के पास ईमेल आईडी नहीं तो कृपया मेहरबानी से ईमेल आईडी क्रिएट करिए. एज ए आईटी स्टूडेंट मस्ट एंड शुड हैव एन ईमेल आईडी. आईटी विद्यार्थी होने के बावजूद आपका पास एक ईमेल आईडी होना जरूरी है. तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस इंटरनेट सर्विसेज. मींस व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द इंटरनेट. इंटरनेट द्वारा, इंटरनेट माध्यम से हम क्या क्या काम कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. Quick information is regarding any topic is available 24 hours on the internet. I think
every person know. Huge information means internet definition. We are already given. Huge information highway, global network, global village, networks of networks. So according to the definition, so internet information having means huge information in the entire world that is available in 24 hours. Users can access the data through internet. इंटरनेट माध्यम से इंसान लोगों 24 घंटे में कभी भी सुबह रात दिन दोपहर ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है 24 आवर्स के अंदर कभी भी आप इंटरनेट पे एक्सेस करके इंफॉर्मेशन को पा सकते हो पीपल्स कैन एक्सेस द इंटरनेट 24 hours there is no percentage timings the morning evening night or like that suppose what happened in this India lockdown is implemented in some ways wherever the hotspots are identified, then the government was seized that locations as well as they can offer some timings to purchase minimum needs, milk, ration, whatever it may be. So their purpose, they are offer some limited hours or morning, evening, not by normal timings like 24 hours. So here what I'm telling, internet can access 24 hours. Information about any country and of any type of like political, economical research, defense, astronomy, business, education, in all fields you can access are available on the single click. अगर आप किसी का सब्जेक्ट्स के बारे में समाचार चाहिए तो आप सिंगल क्लिक करने के वजह से इंटरनेट पर तुरंत आपको मिलेगा. Okay, so that is the main advantage of the internet. After introducing this internet, maximum there is no secrecy in the human being life. इंसान का जीवन में मतलब अभी तो ये तो कह सकते हैं ओपन सीक्रेसी अभी कोई सीक्रेट नहीं है मतलब कई बार कुछ लोगों क्या कहते हैं ज्ञानी लोगों मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट मान लीजिए कुछ और चीज मान लीजिए अपना सीक्रेसी मेंटेन करते रहते थे किसी को बांटने में ज्ञान वगैरह इंटरनली कुछ अलग फील होता रहता था अगर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में बांट दिया मान लीजिए ज्ञान मान लो ना तो कुछ फायदे वाली चीजें हैं कुछ सीक्रेट्स हैं तो उसका बिजनेस लॉस होता थे नहीं तो लोग बाद में उसका सीक्रेट्स पता होने के बाद कमजोरी मानते थे उसका रिस्पेक्ट नहीं देते थे इस तरह नेगेटिव थिंकिंग but nowadays after introducing the internet there is no such type of situation entire information is available the internet people can access or people can get within a fraction of seconds to apply a single click. You can do banking, rail and air reservation, shopping, e-commerce, reading newspapers, magazines, etc. while sitting at your own place through your system. मोबाइल मान लीजिए सिस्टम की जगह पर स्मार्टफोन टच फोन एंड्रॉइड व्हाटएवर इट मे बी आप अपना जगह पर घर पर ऑफिस में स्कूल्स में कॉलेजेस wherever you are living लोग यात्रा करते समय पर मेट्रो में बैठ के बस में रेल में बैठने के बाद भी घर पर काम करते भी okay so they can access the information sometimes housewives what happened there is no light serial is going today episode is an important episode okay like suppose Mahabharat so then they can watch the serials in their phones also no power no problem no light and no signals but if they are having a smartphone Android phone through that phone also people can see these episodes they are doing another work रसोई घर के अंदर काम करते हुए ही सीरियल देखते रहते हैं नहीं what I'm telling as a teacher I want to give the explanation you people also you simply switch on that log in this live classes virtual classes and back and you are doing something घर का भाई से बहन से नहीं तो फ्रेंड से बातचीत करना कुछ और काम करना ये तो करते रहते हैं कुछ लोग वीडियो वगैरह ऑफ करके okay so people can access the data 24 hours through this internet so some of the specific services are there net banking rail and air reservations shopping through e-commerce
reading newspapers, magazines. All these tasks can perform with a single click as well as with a sitting your own place. आप अपना जगह पर बैठ के घर से बाहर ना निकल के भी ये सारे काम कर सकते हैं. ईमेल इज लाइक, ऑलरेडी ईमेल के बारे में डिस्कस किया 2 दिन. 24 hours post office where one can receive and send the mails at almost no cost. ईमेल 24 घंटा का सर्विस है, इसलिए अभी भारत सरकार ने इंटरनेट आने के बाद पोस्ट ऑफिस को भी शनिवार रविवार भी खोलने का काम शुरू किया. Okay, leave it. Then, friends, search engine. It is an application that helps user in finding information or document from ocean of knowledge that is internet. देखिए, अभी भी जस्ट हमने डिस्कस किया, just we are discussed an internet having means in a world having huge information. So if you want to find such a particular information on the internet, it is not an easy manner. मतलब इतना बल्क इंफॉर्मेशन में, बतेरे इंफॉर्मेशन में से आपको जो जरूरत इंफॉर्मेशन को आसान तरीके से, मतलब आम इंसान भी कम समय के अंदर तुरंत पाने के लिए, तुरंत ढूंढने का काम इतना आसान नहीं है. तो टू डू दैट टास्क, उस काम को आसान तरीके से करने के लिए सर्च इंजन फैसिलिटी है इंटरनेट पर. सम ऑफ द means applications are there. Search engine application that helps a user to finding the information or documents from the internet. इंटरनेट के माध्यम से लोग अपना जरूरत इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं. उस काम के लिए सर्च इंजन के ही काम में sorry. In internet we have millions of web pages. These web pages contains a lot of information. Searching the desired web pages and finding the exact information is not an easy task, just I was explained. In this kind of situation, search engines play a very important role. All we have to do is to enter some keywords in a search engine, and in returning it provides us a list of relevant and web pages. आप इसका जो विषय का अनुसार keywords में एक मुख्य शब्द टाइप करने की वजह से जरूरत इंफॉर्मेशन को आप आसान से पा सकते. If you want to get the information, then by using the search engines, you can enter the keywords, means main words, main subject, and within a fraction of seconds, these search engines are in backend. They can search and find the relevant documents and we simply displayed so many hyperlinks. ये तो आपको सबको पता है. As a students, IT students, all are know very well about these things. As a teacher, these are in our syllabus. I want to finish this one. इतना ही नहीं है, अभी गूगल वॉइस चैट वगैरह आने के बाद सपोज इलिटरेटर कैन टाइप द डाटा, बट व्हाट अबाउट द इलिटरेट? पढ़ा लिखा इंसान टाइप कर सकता है, अनपढ़ा इंसान कैसे टाइप कर सकते? वो भी चाहते इंफॉर्मेशन को एक्सेसिंग करने के लिए. तो उन लोगों के लिए ये वॉइस सर्च इंजन मीन्स आप ये गूगल में वॉइस बटन से क्लिक ऑन करने के बाद अपना मुंह से कोई भी शब्द कहने के वजह से अकॉर्डिंग टू योर वॉइस वॉइस रिकॉर्डिंग कैन कन्वर्ट दैट your voice into text, and back end again the search engine will find out the related information. जो भी हम मुंह से कहते हैं तो वो अपना आवाज के अनुसार, साउंड्स के अनुसार again back end the search engines can find out the information and display the required information within a fraction of seconds. Okay, so friends, that means what I'm telling here, educated persons can type the required information related keywords, but what about the uneducated? अनपढ़ा इंसान टाइप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आसान से पाने के लिए सपोज इसको एक बाहुबली में एक गाना चाहिए, सुनना चाहते हैं. You want to listen a song from the Bahubali movie, then he is not able to type that better. वो टाइप नहीं कर सकते लेकिन मुंह से तो बोल सकते हैं. इसलिए इस वॉइस रिकॉग्नाइजर से आपको जो भी चाहिए, कोई भी एक नॉलेज मीन्स बुक्स के लिए
या तो कुछ सब्जेक्ट योगा, न्यूज, कोरोना के लेटेस्ट स्टेटस, or some exams notifications. If a student want to seek the admission into particular course, एक विद्यार्थी कोर्स में एडमिशन लेते समय पर मतलब फॉर्म निकला नहीं है, और एग्जामिनेशंस के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में अगर सर्चिंग करना चाहते हैं तो मतलब वो तो टाइप कर सकते हैं, मुंह से भी तुरंत बोलने की वजह से अनपढ़ को जो भी चाहिए उसको वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन तुरंत पा सकते। इतना ही नहीं, इन रूरल एरियाज आल्सो द पीपल्स आर एक्सेसिंग दीज सर्च इंजन्स थ्रू वॉइस। वे एपिसोड्स मैंने बताया ना, स्पेशली सीरियल्स, सम मूवीज, व्हाटएवर इट मे बी। ओके, सो दीज आर द पॉपुलर सर्च इंजन्स nowadays. People know very well about the Google. आप इंटरनेट पर कुछ भी नहीं पता है तो सिर्फ गूगल शब्द याद है तो गूगल टाइप करने के बाद एक वाइट सर्च बार नीचे डिस्प्ले करेगा। उस सर्च बार के अंदर जो भी एक दो शब्द टाइप करने की वजह से, नहीं तो वो म्यूट वाली बटन भी क्लिक करके आप वॉइस रिकॉग्निशन द्वारा भी हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द वेबसाइट्स, altavista.com, google.com, bing.com, yahoo.com, Rediff, बहुत सारे search engines are there. So many search engines are available. So with the help of these search engines, we can access the information. Especially the search engines use a software called Spider. Search engine के बैकएंड में एक Spider नाम से एक सॉफ्टवेयर को काम में लेता है, और वेब क्रॉलर भी कहते हैं, which continuously crawls on the web to comb out any newly published web documents or newsletters and finds their web addresses. ये सर्च इंजन का काम ही ये है, जब सपोज इन इंटरनेट वेब पेजेस, वेब डॉक्यूमेंट्स, इफ एनी न्यूली पब्लिश्ड web documents are available within a fraction of seconds, they can find out these newly published web pages addresses, then they can provide the information. Nowadays, due to that reason, in entire world, you people are listen. IT means information technology. Okay, so entire information will be computerized. You can get any information, anytime, in anywhere. Friends, in internet chart option is also there. You people know very well. The chat is an online conversation in which we can instantly send messages back and front to one to another. ऑनलाइन चैटिंग्स में क्या है, हम अपना भावना को मतलब शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं थ्रू टाइपिंग टेक्स्ट, पिक्चर, सिंबल्स, व्हाटएवर इट मे बी. Nowadays symbolic some codes are there. Okay, so instantly communication directly. One person can send a message, simple message, then immediately he can get the reply. When a chat session begins, the text typed by the sender gets displayed on the receiver's monitor and vice versa. Sender जिन्होंने बातचीत करना चाहते किसी और से, तो उसको क्या है, सिर्फ टाइप करने की वजह से तुरंत उसका मॉनिटर पर, स्क्रीन पर या तो मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत डिस्प्ले करेगा। व्हाट्सएप तो सब लोग यूज करते रहते, सबको पता है। ठीक है, all the people know nowadays all are using the WhatsApp. So this is one of the chatting. When a chat session begins, the text typed by the sender gets displayed on the receiver's monitor. Just I was just explained. One can chat through an instant messengers, a chat room, or chat websites, etc. Before entering this WhatsApp, people can visit the cyber cafe or some in their own laptops. They can purchase headphones, internet connectivity. When they got a time, they can chat the entire world. दुनिया से हर corner से, Bangalore to Calcutta, out of countries also, they can chat through this internet. After that, technology improved, then those features are offered in minimum cost, less cost. सस्ता में दुनिया में आम जनता के लिए भी via this Facebook, WhatsApp वगैरह इसका द्वारा उपलब्ध है, अवेलेबल है nowadays. ओके, पहले होते थे चार्ट रूम नाम से, चार्ट वेबसाइट से, उस वेबसाइट से गेट टू SMS
रेट SMS में मोबाइल नंबर सपोज रिसीव करते रहते थे, आप इस मोबाइल में किसको भेजना उस मोबाइल नंबर ऊपर टाइप करके फिर मैसेज टाइप करने के वजह से तुरंत उसका पास जाता था बिफोर व्हाट्सएप, फिर देन दे कैन सेंड द रिप्लाई। एक से अधिक लोगों को भी काम लगा के फिर टाइप करते रहते थे और कॉपी करके कॉपी पेस्ट वगैरह। ओके, सो दीज आर द गूगल टॉक, MSN मैसेंजर्स एंड स्काइप, all these are the examples of the live chats. Video conference, by using this internet, we know very well about, we can conduct the video conferences. Okay, friends, it involves the use of video cameras connected to two or more computers. एक तो कैमरा का सहायता से एक या अधिक कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्किंग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते रहते हैं nowadays in mobiles such phones like video call, or some people are suppose having some joint families, they are scattered, means scattered, मतलब कि एक बिग फैमिली में से लोग सपोज nowadays due to the job, their profession, business, they are living in different places. एक बड़ा परिवार में क्या होता है, नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से थोड़ा दूर रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन आपस में सभी लोग एक साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो तब भी ये कॉन्फ्रेंस कॉल्स द्वारा बातचीत करते रहते हैं। So here, so video conference is one of the feature of this internet services. It involves the cameras to connected to or more computers, images and sounds also then sent through the internet where user not only hear the each other. Okay, केवल वॉइस का अलावा पिक्चर्स को भी, साउंड्स को भी भेज सकते हैं। Just like a best example is our live classes, virtual classes. This is also one of the video conference. This technology is mainly used to virtual meetings among a group of people discuss political, business, medical, or social affairs like that. In television also we are observing like a debate, okay, or some corporate companies, they can conduct the meetings with their branches. The advantages to conduct corporate meetings between the branches of a company that are situated far away. हेड ऑफिस से बहुत दूर में रहते हैं ये ब्रांच ऑफिसेस, लेकिन ब्रांच ऑफिस मैनेजर से नहीं तो स्टाफ से बातचीत करने के लिए तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस क्या करते हैं, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस दे कैन डिस्कस देयर कंपनी डिटेल्स व्हाटएवर इट मे। इट इज मोर इकोनॉमिकल कम्युनिकेशन, मतलब बहुत सस्ता पड़ता है ये। मीटिंग कंडक्ट करने के लिए ओल्डर डेज में क्या करते थे, लास्ट टाइम इंटरनेट टाइम पर आई वाज गिवन एग्जांपल, द मैन, वैन एंड मैन के बारे में बातचीत करते समय पर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी कलेक्ट्रेट, they are having one office, NIC, Network Information Center. In that center they are constructed like a video conference hall through this internet. In those days 15 years back, 10-20 years back, before introducing this 2G, 3G, 4G touch phones, Android phones, the maximum government people are MNS, multinational companies, they are conducted video conferences through this networking. Friends, here अभी तो दुनिया पर 2G, 4G कॉन्सेप्ट, 3G, 4G कॉन्सेप्ट आने के बाद एंड्रॉइड फोन, टच फोन, स्मार्टफोन्स का द्वारा लोग, पीपल आसान तरीके से, सस्ता रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग, इंटरनेट एक्सिंग, we are using these things. Whenever the Reliance also introduce the data, free of data, so every person having an idea what is meant by the data. डाटा का मतलब क्या है, 1G, 1.GB, 2GB डेली अनलिमिटेड, ये चीज हम जनता को भी पता चल गया। तो पहले क्या होता था, कंप्यूटर बैकग्राउंड पीपल्स ओनली, एजुकेटेड पीपल्स कैन ओनली हैविंग सम आइडिया अपॉन द कंप्यूटर डाटा। डाटा का मतलब क्या है, जो बंदा आईटी का बैकग्राउंड है, कंप्यूटर्स का बैकग्राउंड, उन लोगों को भी पता चलता था। मैं ये बताना चाहता, रियल एग्जांपल्स these things in collectorates na, when the CM wants to, chief minister wants to conduct a meeting conference with district collectors and magistrates or police superintendents, SP, like that, they can conduct the video conference only because
they want to reduce the cost. What type of cost? If higher officers are attend the meeting, then first of all they can book a flight ticket, AC train tickets, or accommodations, hotels, then and boarding means food also. So all these things are collected, recovered from this their office. बैकएंड में क्या है, ये सारे खर्चा ऑफिस से लौटाना पड़ता है. So to avoid these things, then they want to conduct instant meetings also. So these video conferences are much more helpful. इस तरह unnecessary खर्चा को बचाने के लिए video conference meetings बहुत मदद करते हैं. Meetings can organize a short notice as people can easily participate from distant locations. मतलब कम समय के अंदर तुरंत मीटिंग कंडक्ट कर सकते. पहले होते थे मीटिंग के लिए नोटिस भेजते थे, मेल्स वगैरह. So then nowadays there is no need to plan before 1 week, before 10 days, before 5 days. If they want to conduct a meeting from head officer, super users or higher officers, simply you can send a small WhatsApp message or some other messages. Then within half an hour or 1 hour, people can join a meeting through this video conference. अभी कोई भी ऑफिसर अधिकारी है तो कंपनी का मालिक ब्रांच ऑफिस से भी नहीं तो ब्रांच स्टाफ से भी बातचीत करने के लिए आधा घंटा पहले 15 मिनट पहले भी एक मैसेज व्हाट्सएप से नहीं तो कुछ और द्वारा मैसेज ड्रॉप करके फिर तुरंत मीटिंग कंडक्ट कर सकते. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंक्रीजेस द बिजनेस प्रोडक्टिविटी. बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्टिविटी को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा बढ़ा सकते हैं. कैसे? दैट मींस डिस्कस कर सकते प्रॉब्लम्स. अभी सपोज सेल्स नहीं बढ़ रहा है, स्टॉक का पोजीशन क्या है, नहीं तो फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस क्या है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस, और सपोज दे वांट टू ऑफर सम ऑफर्स टू इंक्रीज देयर सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर रेट्स वगैरह. So through this video conference, they are discussing all these things. These are helpful to increase their business productivity. Quality कैसे maintain करना है, improve करना है, sales कैसे बढ़ाना है. Okay. Students present at different locations can attend lectures and training through video conference. Really, before introducing this Zoom and this WhatsApp, in IITs, Indian Institute of Technologies, NITs, National Institute of Technologies, and big universities, they can conduct these virtual classes. If an important topic is there, specialized topics, only when experienced professors, lecturers, they are available in a particular location institute, then they can conduct a class. Then remotely, remaining all institutes, students can attend that live class, like our present class. IITs, NITs वगैरह में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक के लिए मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स द्वारा क्लासेस कंडक्ट करते समय पर, सपोज IIT खड़गपुर वांट टू गिव अ लेक्चर और IIT दिल्ली, मुंबई, they can communicate the schedule to remaining IITs and these students are attend the classes. Okay, इतना नहीं है, आप लोगों को पता होगा जैसे एलिन इंस्टीट्यूट, नारायणा है, फिटजी, like this medicine purpose, so many private institutes also there. If they want to improve, suppose if any branch, if any faculty got some disease, तबीयत खराब हो गया, उसका क्लास वो पर्टिकुलर टॉपिक में वीक है, फैकल्टी स्ट्रांग नहीं होता, ये फ्लाइट्स का द्वारा ये प्राइवेट एजेंसी वाले क्या करते हैं, तुरंत फैकल्टी को भेजते 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, जो मुख्य टॉपिक्स को कवर करते थे ताकि उस इंस्टीट्यूट के अंदर रैंक्स पाने के लिए. So nowadays there is no such type of setup. They can conduct these virtual classes and all the classes are recorded and sent to their students wise, branch wise. The students can log in and they can listen that lessons in any time. So what I'm telling here, the video conference are helpful to the virtual classes. It is a useful technology for real-time telemedicine and telenursing applications. It helps the doctors in discussing cases and providing diagnosis to patients across the globe. It's entire the world. Suppose from the hospital to hospitals, they can discuss the in medicines, doctors and nurses
if a particular specialized case is there, that branch means that particular local peoples cannot have an idea how to means purify that disease, then they can contact the head office. Then head office peoples are the main big hospitals specialist doctors can guide through this video conference. AIIMS, or as a students, I think you know very well about, विद्यार्थी लोगों को सबको पता है, सपोज एम्स वगैरह में कोई स्पेशलाइज्ड केसेस आ गया तो फिर उसके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं तो डॉक्टर्स को समझाना है तो कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसेस द्वारा डिस्कस करते रहते हैं। नहीं तो कई केसेस कई और जगह पर है, सीरियस है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो टाइम ले नहीं है ले जाने के लिए, थ्रू दिस वीडियो कॉन्फ्रेंस दे कैन गाइड हाउ टू ट्रीट, ओके, सो दे कैन गिव द ट्रीटमेंट। मतलब कई जगह पर क्या होता है, इमरजेंसी केसेस है, इंपॉर्टेंट अति मुख्य इंसान है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए समय नहीं, वक्त नहीं है, इमरजेंसी है, फिर तुरंत ही वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कांटेक्ट करके फिर लाइव दिखाते रहते पेशेंट्स को जो भी सिचुएशन सिम्टम्स वगैरह, देन दे कैन गाइड। ई लर्निंग सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अभी जस्ट हमने ये क्लासेस के बारे में डिस्कस किया। ई लर्निंग मींस इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इट ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस एंड प्रोसेस डिजाइनिंग टू डिलीवर इंस्ट्रक्शंस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मींस। एडवांटेज, लेस एक्सपेंसिव है नॉर्मल क्लासेस से अगर कंपेयर करेंगे तो। ई लर्निंग कैन यूज टू इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट अ टाइम, because for example, live example, our class there are 300 students are joined, but if it is a traditional classroom in your institute, in your particular trade, you can see only 24 students, or if you have 2 sections, 2 units, then 48 or 50. But now in our class 300 students are joined, so that is the main advantage. E-learning can use it to import the training to a large group of students at a time. E-learning courses moved at a faster pace. E-learning के द्वारा क्या, फास्टर ट्रैक, कम समय के अंदर ज्यादा सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हैं। Okay, some these people who are preparing to the JEE, NEET, joint entrance exam for engineering or medicine, those people can join the short-term course also. Entire 12 months course they want to learn 40 days, 1 month through this speed track. Okay, so e-learning having such type of facilities. Okay, flexibility is major benefit of e-learning. A student can attend class anytime, anywhere. Education is available whenever it is needed. अगर एक विद्यार्थी का पास दिन में समय नहीं है, और काम कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं घर का सपोर्ट करने के लिए financially, so when the student having time, evening, night, if the student is interested, then also attend the classes. Sometimes some faculties or some institutes also conduct the evening and night classes also. Nowadays in lockdown systems, I think you people are observed in the Zoom. Some of the teachers are offered evening 5 o'clock, 6 o'clock also. Okay. E-banking और इंटरनेट बैंकिंग, इसके बारे में मैंने समझाया आप लोगों को। इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं, नेट बैंकिंग कहते हैं हम, और ई बैंकिंग। ओके, सो इट इज ए वे ऑफ परफॉर्मिंग बैंक ट्रांजैक्शंस यूजिंग इंटरनेट। चेक बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं इंटरनेट द्वारा। मेक एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, ट्रांसफर मनी आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर। सपोज यू आर लिविंग एट मेन सिटी, मेट्रो सिटी, your parents or brothers or relatives or friends are living in remote area, so if you want to send send money instantly, immediately, means तुरंत, अभी कभी आप उनको पैसे जरूरत है, आप तो एक बड़ा सिटी में रह रहे हो, दूर, भाई को बहन को नहीं तो पेरेंट्स को भेजना है, तो ई बैंकिंग और नेट बैंकिंग द्वारा इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर आप भेज सकते। इन बैंकिंग द्वारा लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते। एडवांटेज, इट इज सिंपल टू ओपन एंड यूज एन इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट। इंटरनेट बैंकिंग कॉस्टलेस। अगर बैंक्स भी इंटरनेट द्वारा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स वगैरह रेंट पर लेके फिजिकली काउंटर्स वगैरह बहुत सारे लंबा काउंटर्स अरेंज करते थे, तो रेंट्स और स्टाफ को भी बहुत ज्यादा स्टाफ को रखने पड़ते थे सर्विसेज ऑफर करने के लिए। कहते थे ना वो मैसेंजर को नहीं तो बॉय बोला तो वो लेक्चर लेकर आना, ये लेक्चर लेकर आना, ये फाइल उधर से उधर रखना है। So there is no such type of environment here in internet banking.
due to that reason it is a costless. It reduces the time to wait in a queue of a bank branch. एक बैंक ब्रांच पर जाना फिजिकली, फिर लाइन पर खड़े होना है, ठीक है, जाने के लिए आपको व्हीकल्स वगैरह लेकर जाने पड़ते हैं, तो बस से, ट्रेन से, बाय पास, व्हाटएवर इट मे बी. सो देयर इज नो सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट हियर. आप इतना क्यू में खड़े होने की जरूरत नहीं. You can access your account anytime and anywhere, any day. Banks में what happened? Suppose second Saturday, fourth Saturday, holiday, Sunday is holiday. But you have a net banking. You can do your transaction in any time, in any day. आप किसी का दिन भी, ना शनिवार रविवार ऐसे कोई दिन का मतलब ही नहीं, कोई समय की भी मतलब नहीं. अगर आपका पास नेटवर्किंग फैसिलिटी मीन्स नेट बैंकिंग का अकाउंट वगैरह आपने खोल रखा, यूजर आईडी पासवर्ड यू हैव थ्रू पर्टिकुलर ब्रांच, you have an internet connectivity by using your mobile also, you can do all these things. Worldwide connectivity to the websites of the banks. Nowadays all the banks are computerized, so these banks are having worldwide connectivity. दुनिया पर हर corner से connectivity है. ऐसे कोई बैंक नहीं है बिना computerized, बिना इंटरनेट, बिना ATM, बिना नेट बैंकिंग वाली बैंक. Okay, it is easy to keep a regular check on the account's balance. नेट बैंकिंग है तो क्या कर सकते हो आप, अपना बैंक का बैलेंस वगैरह फ्रीक्वेंटली बार बार चेक कर सकते हो. आप ट्रांजैक्शंस वगैरह है तो आपको पता चल जाता है. तो बैलेंस है तो किसको कब भेजा, क्या है, ये डिटेल्स आप इंडिविजुअली देख सकते हैं. यानी देयर इज नो डिपेंडेंट अपॉन द बैंकर्स. अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं तो क्या करना है, गलत ट्रांजैक्शन हो गया ना, तो पैसे कट गया, कुछ और है, तो तुरंत जाके बैंक वाले से संपर्क करना पड़ता है. सर जी मेरे ये पैसे कट गया है, मेरे पास मैसेज आया हुआ है, लेकिन मैंने तो ट्रांजैक्शन तो किया नहीं. So if you have a net banking facility, then there is no need to go to the bank and ask the bank peoples. अगर आपका पास नेट बैंकिंग सुविधा है तो आप बैंक पर बार बार जाने की जरूरत नहीं, खुद ही चेक कर सकते. So e-commerce, it is also called as online shopping. Okay, online, all the online shopping comes under the e-commerce. Both products and services purchased by online shopping. E-commerce का अंदर यही चीज होता रहता है, खरीद करना, भेजना है, ये दोनों है. ठीक है. It is an application of e-commerce that allows purchase of goods from any part of the world. दुनिया से कहीं करने से आप खरीद कर सकते. Suppose one newly established company introduced new products or quality products with less cost, but it is a far away, हमसे बहुत दूर में है वो, लेकिन हम उन चीजों को खरीद करना चाहते हैं. उस पर पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट्स, मोबाइल्स मान लीजिए, कॉस्मेटिक्स आइटम्स मान लीजिए, क्लॉथ्स मान लीजिए, बुक्स वगैरह. Okay, so all these things, you know, if you want to purchase from anywhere means enter the world, दुनिया से कहीं भी आप ई-कॉमर्स द्वारा, ई शॉपिंग द्वारा आप खरीद कर सकते. आप लोगों को पता है Amazon, Flipkart, Snapdeal वगैरह, so many sites are there. www.ebay.in, Homeshop 18, so many sites are there. These sites are offers e-shopping. Advantage, convenience. E-commerce is a very convenient thing, means entire process is very convenient, means इसके अंदर खरीद करने का जो प्रोसेस है वेरी आसान है. सिंपली लॉग ऑन द शॉपिंग वेबसाइट, चूज द डिजायर्ड आइटम्स. आप जिस फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, किसी से आप खरीद करना, अमेजन से, इसके अंदर लॉग इन करना है. आप जो पसंद चीज है उसको सेलेक्ट करना है. देन केप्ट इन वर्चुअल कार्ट, उसका अंदर सेलेक्ट करते समय पर एक कार्ट नाम से एक वर्चुअल कार्ट है, बकेट जैसे वो चीज है, इसके अंदर आप अपना सेलेक्टेड आइटम्स को रख सकते हो. जब तक आप फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक, फाइनली मार्किंग करने तक आप ये कार्ट के अंदर रख सकते हैं आइटम्स को. कई बार क्या होता है, इंसान लालच का पैसे नहीं तो जरूरत नहीं होते, कई बार एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर देते हैं, कार्ट के अंदर इतना पैसे भी नहीं, पता चल गया, ये तो बाद में ये पता चल गया, ये तो मेरे लिए अभी इस वक्त पर जरूरत नहीं है. कस्टमर कैन टेक ए डिसीजन at the end of the moment before making a payment. पेमेंट देने से पहले कई बार मन बदल जाते हैं, अभी ये चीज मुझको जरूरत नहीं है इस वक्त पर, तो उस बकेट से हटा सकते हैं. ओके, so that means user can store selected items in middle of the virtual cart. virtual cart का नाम से, कार्ट नाम से, बकेट नाम से अंदर स्टोर कर सकते हैं जब तक फाइनल पेमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ सकते. फिर अगर फाइनल मार्किंग करते समय पर पेमेंट हो जाए. नो नीड टू विजिट ए शॉप, कन्वेंस की जरूरत नहीं है. बाइक, स्कूटर, गाड़ी वगैरह, साइकिल, फिर गाड़ी से गए तो पार्किंग ढूंढना पड़ेगा. फिर ट्रेडिशनल शॉपिंग में क्या है, आइटम सर्च करने के बाद पेमेंट के लिए क्यू में लाइन में खड़े करना पड़ता है.
Even suppose if you are visiting a big marketing centers, shopping malls, so then after selecting the at supermarkets, there is the physical bucket is there. People can select the items and keep their items in the bucket. After completion of the selection, these people can reach to the payment counters. We know very well about these things. Suppose अगर आपने कोई भी मिडिल या तो हाई लेवल शॉपिंग मार्केट में गया तो मार्केटिंग करने के लिए विजिट किया तो आपको ये पता होगा आइटम्स वाइज प्रोडक्ट्स वाइज अरेंज करके रखा, ऑयल एक चीज, कॉस्मेटिक एक चीज, दाल एक चीज, साबुन अलग 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 प्रोडक्ट के हिसाब से they have much more place. They can arrange in proper way for easy to selection of the customer. कस्टमर को आसान से आइटम सेलेक्ट करने के लिए आइटम वाइज शॉपिंग मॉल के अंदर क्या करते हैं, बिग मार्केट्स में अरेंज करके रखते हैं, तो कस्टमर अपना हिसाब से अपना जरूरत अनुसार प्रोडक्ट के हिसाब से उस जोन में जाके जो जो चाहिए वो लेके उठा के फिर क्वालिटी के अंदर रखते हैं. सो फिर फाइनली पेमेंट के लिए पेमेंट काउंटर पर जाना है. फॉर एग्जांपल सपोज इफ यू आर विजिटिंग एनी मिलिट्री कैंटीन वगैरह में जाइए, फर्स्ट वीक वगैरह सेकंड वीक में जब आइटम्स आ गए तो लोग बहुत सारे लोगों क्या होता है, हाउस वाइज और हाउस peoples are doing in militaries means navy वगैरह whatever it may be. Now I am not discussing that one. I am discussing this e-shopping or traditional shopping. So ये मिलिट्री कैंटीन वगैरह विजिट करते समय पर क्या आइटम सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट के लिए लंबा लाइन में क्यू में वेट करना पड़ा. So they are offering some discounts. Due to that reason, people are go to that canteen. They select the items at the time of making payment. No? So the canteen management also give an announcement before 1 hour they can stop the selections. कई बार कई शॉप में फ्लोटिंग का हिसाब से क्या करते हैं, आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले क्या करते हैं, आइटम्स को सेलेक्ट करने का काम बंद कर देते हैं. सब लोगों को काउंटर पर पहुंचने के लिए कहते हैं. सब काउंटर पर पहुंचने के बाद अपना बाल्टी के साथ सामने खड़े होकर फिर धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ते समय पर पेमेंट तक जाने में कई बार आधा घंटा 1 घंटा भी टाइम लगता है. दिस इज द रियल एग्जांपल. If you have a such type of facility, you must should visit and observe. अगर आपका पास ऐसी सुविधा है, आपका ब्रदर, फादर, भाई बहन अगर जो भी है इस डिफेंस में काम करते हैं तो एक बार डिफेंस कैंटीन में विजिट करके देखिए रियल में क्या होता है. इवन नॉर्मल में भी सपोज आपको चीज खरीद करने के लिए जाना है तो फिजिकली जाना पड़ेगा, या तो कुछ चीज बॉम्बे में, आप कलकत्ता में रह रहे हो तो दिल्ली में रह रहे हो तो उधर से भी आप ऑनलाइन द्वारा मंगवा सकते. So that is the advantage. No need to visit the shop. There is no need to carrying any conveyance, bus, scooter, cycle वगैरह. पार्किंग का ढूंढने की जरूरत नहीं, पार्किंग चार्ज पेमेंट की जरूरत नहीं. There is no risk. There is no queue for payment. पेमेंट के लिए क्यू में लाइन पर बनने की जरूरत नहीं. ई शॉपिंग का एडवांटेज, प्राइस एंड सेलेक्शंस, चीप डील विद बेटर प्राइसेस. तो ऑनलाइन में ये भी है, चीपर डीलिंग्स होते रहते, बेटर प्राइसेस मिलते रहते, बिकॉज they cannot maintain any godowns, shops. The cost is also less. There is no middleman. और मध्यवर्तीदार लोग नहीं है, सेल्समैन, सेल्स बॉयज वगैरह शॉप के अंदर रखने की जरूरत नहीं है ओनर को. Suppose if they maintain all these things, not traditional business, they can add all these costs on the item or customer को ऊपर डालते. इसलिए कई बार सर्विस चार्जेस कॉस्ट का अलावा सर्विस इंक्लूडिंग मींस दे कैन ऑफर सम सर्विस चार्ज आल्सो. ओके, so there is no such type of cost here. So that is due to that it is very cheaper and better, you can get the better prices. Sometimes they can offer discounts, coupons, rebates. कई बार स्पेशली होता है क्या, सीजनल में दिवाली नहीं तो होली और सम अदर फेमस फेस्टिवल्स टाइम में they can offer discounts, coupons. तो they can improve their sales. कंपनी क्या करेगा, कुछ त्योहार का दिनों में क्या करते हैं, दिवाली वगैरह, होली, सम अदर फेस्टिवल्स टाइम में क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं, कूपन ऑफर करते रहते हैं, उसको ऊपर से कुछ और चीज कर सकते हैं हम. सो दैट इज द मेन एडवांटेजेस. आप लोगों को पता है कोई एक चीज 500 का नहीं तो 200 का आइटम 1 रुपये में देते हैं फर्स्ट टाइम कस्टमर के लिए, फर्स्ट आइटम्स के लिए. ओके, so these things you know very well about these things now. So these are the advantage of the online e-shopping. Information and retrieve. An online store provides reviews on the products के बारे में reviews information वगैरह provide करते रहते through internet. The customer gets additional information like instructions on the products usage,
manufacturers or specifications, safety procedures, etc. that help in guiding the about that particular product. ऑनलाइन में क्या है, आप इस तरह इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है, प्रोवाइड कर जाते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, इस प्रोडक्ट को कैसे काम में यूज में लेना है, इत्यादि चीज ऑनलाइन में अवेलेबल है इंफॉर्मेशन एंड some of the disadvantages also there in e-commerce. So what are the does not have personal touch of this shopping. आपको क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी आप फिजिकली टच नहीं कर सकते. They can display in a different colors, in a different manner and with a beautiful nature. ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स में क्या होता है, प्रोडक्ट को आप इतना एट्रैक्टिव कर देते हैं, उसका कलर्स मान लीजिए 3D डायमेंशंस का हिसाब से, क्वालिटी वगैरह ऐसे हैं, मतलब दिखाई देते हैं, लेकिन आप फिजिकली तो टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स है, कॉस्मेटिक्स आइटम्स है, क्लॉथ्स पैकेट के अंदर, नॉट ओनली दी ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रेडिशनल शॉपिंग, फिजिकल शॉपिंग में भी कस्टमर क्या करता है, सपोज एक कपड़ा का गारमेंट्स दुकान पर गया, फिर देखा पन्नी के अंदर कवरिंग, वो पन्नी को अंदर है क्लॉथ, फिर भी इंसान क्या करेगा, पन्नी को वैसा भी खोल दीजिए, फिर हाथ लगा के देखते हैं क्वालिटी. कई बार क्या करते हैं, सर जी इसको मेरे को तो ढीला हो जाएगा या तो टाइट है, तो इसलिए कहते हैं उधर ट्रायल रूम से ट्रायल करने के लिए कहते हैं. तो देयर इज नो सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट हियर. आप ऑनलाइन मार्केटिंग में, ई शॉपिंग में वो चीज नहीं पहचान सकते आप, मतलब प्रोडक्ट्स को टच करके देखना है या तो ट्राई करके देखना है, वो चीज नहीं है. कॉस्मेटिक्स आइटम्स क्या करते हैं, कई बार अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग स्किन के, इंसान का स्किन अलग अलग टाइप्स ऑफ स्किन होता है, हेयर्स वगैरह स्किन, सो हर प्रोडक्ट हर इंसान के लिए सूटेबल नहीं है. कई बार ऑनलाइन से एक प्रोडक्ट को मंगवाया है, अप्लाई करके देखते समय रिएक्शन हो गया, फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाने पड़ेगा. समटाइम्स इट विल हार्मफुल टू, कई बार खतरा में भी डाल देते वो चीज. अगर ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, अगर नया प्रोडक्ट आ गया तो कस्टमर थोड़ा हल्का से फिर लेके अपना शरीर पर अप्लाई करके देखते 5 मिनट 15 मिनट्स, एनी रिएक्शन इज देयर, मतलब खुजली जैसे, कुछ अलग जलन जैसे, कुछ प्रॉब्लम है क्या, लाल हो रहा है क्या, फिर देखने के बाद खरीद करते रहते हैं. These people sir, these things are doing some daily, means some habitual persons. आम जनता ये कर नहीं सकते हैं, जो पीपल हैबिचुअल है, आदत है उनको मार्केटिंग करना पसंद है, चीज को टेस्ट करके, कॉस्टली आइटम्स होते हैं, फिर उसको है ना ये लोग वैसे इस तरह चेकिंग करके खरीद करते रहते हैं. तो दोज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इन दिस ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग द्वारा, ई शॉपिंग द्वारा इस तरह हम चेक नहीं कर सकते, फिर कई बार वापस वगैरह करते समय पर भी दिक्कत करते हैं. सिक्योरिटी इश्यूज, मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन इज नॉट प्योरली सेफ. हर बार ऑनलाइन के द्वारा पेमेंट करना है सेफ्टी नहीं है. There may be sites which are not secure or do not encrypt the personal credit card data. So if hackers breaks into their systems, our confidential data can be compromised. Means कई बार क्या होता है, ये ऑनलाइन पेमेंट करते समय पर अगर किसी साइट से ना, कई साइट्स वाले ने प्रॉपर तरह से सिक्योरिटी एनक्रिप्ट, डाटा एनक्रिप्ट, मतलब पर्सनल डाटा, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड वगैरह हम एंटर करते समय पर उसको सीक्रेटली एनक्रिप्ट, डाटा एनक्रिप्ट करके रखता है अधिकतर. कई बार कुछ साइट्स इस तरह स्ट्रिक्टली, मींस बहुत तगड़ा सिक्योरिटी अप्लाई नहीं किया बैकएंड में, तो वो इन्फॉर्मेशन लॉस होने के लिए चांसेस है. हैकर्स ऑब्जर्व करते हैं कौन सी साइट से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहा है, कौन सी पर्सन बार बार मार्केटिंग कर रहा है, कौन है, मतलब ह्यूज अमाउंट्स वगैरह, हेवी अमाउंट्स वगैरह कौन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इत्यादि इन्फॉर्मेशन को हैकर्स को ऑब्जर्व करके ही हैकिंग करते रहे. आम जनता का डाटा थोड़ा ना हैकिंग करेगा. साधारण इंसान का बैंक अकाउंट को सपोज हैक किया तो उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. सो द हैकर्स आल्सो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्संस, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग्स. वो लोगों भी हमसे बहुत तगड़ा पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट पीपल्स, सो दे कैन अप्लाई देयर इंटेलिजेंसी थ्रू दिस इंटरनेट टेक्नोलॉजी. So they can hack their websites through hacking that particular site. Now they can get the details of the customers, personal details. That is the disadvantage. Helps in returning the products and following up on the refund or exchange of the items. कई बार कहते हैं मोबाइल्स वगैरह कुछ और चीज, आप लोगों ने सुना होगा, we are hearing ना, when you are purchasing an item from the online, after opening that item it may be got another item. Some other, हमने मोबाइल मांगा कुछ और आ गया, या तो फिर ऑलरेडी अडेप्टर निकला है.
तो फिर इसको एक्सचेंज करने में, चेंज करने में, ये तो पैसे वापस पाने में, लेने में, it will take time. Sometimes it is not possible. So that is the disadvantage. Huge risk of online fraud. ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड्स, ज्यादा फ्रॉड्स होता है, कई बार होता रहता है. Some sites are offer cheaper price. Customer can receive the low quality. इंटरनेट में तो दिखाई दिया क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी, जैसे कलर वगैरह बॉडी बैकएंड में मोबाइल्स के लिए. फिर डिलीवर होने के बाद वो प्रोडक्ट देखते समय पर बहुत लो क्वालिटी, चीपर क्वालिटी मिला. The site shut down unexpectedly after taking the payment for items. Ultimately, the customer cannot receive anything in return for the price paid. कई बार क्या आता है, कई साइट्स है ना, प्राइसेस कम करके अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर से, मतलब कई बार कुछ लोगों का आसपास हर सिटी के अंदर लिमिटेड आइटम्स को डिलीवर कर देते हैं. अब लोग, बहुत ज्यादा लोगों ने ऑर्डर दिया है तो पेमेंट कर ली इन लोगों ने, तो कई बार सडनली उस साइट को शट डाउन कर देते हैं. मतलब दूसरा दिन देखते समय पर वो साइट भी एक्सेस नहीं हो पाता है, कंपनी हवाला कर देते हैं. दैट टाइम कस्टमर के लिए दिक्कत है, वो पैसे मिलने में, रिफंड करने में. ओके, nowadays cyber crime is also implemented, but here these are the possibilities of the disadvantages. E-reservation, friends, we are already discussed as a bus, train, airlines and hotels reservations, checking of the availability of the seats in a bus, train or airbus flights anytime. After checking, if availability means seats are there, then you can book it. मतलब क्या है, एक बस के अंदर, ट्रेन में, एक तो फ्लाइट के अंदर, ये तो एक होटल्स में है, मतलब वैकेंसी है नहीं, सीट्स है नहीं. 15 दिन में सब लोग, कई लोग घूमने के लिए जाता है, फिर उस टाइम होटल्स वगैरह बुक करते हैं. तो अगर सीजन में गए तो फिर पहले बुक करके जाते हैं, तो फिर ऑन द स्पॉट बुकिंग में कहते हैं अच्छी, मतलब गुड क्वालिटी एंड गुड सर्विसेज होटल्स में पहले फिलअप हो जाते हैं. लेकिन हम लोग पीपल्स कैन ऑलरेडी गॉन, लोगों जाने के वजह से मजबूरी से क्या करना पड़ता है, दूसरे के और मीन्स मेंटेनेंस सही नहीं होता है, सर्विसेज आर नॉट गुड, क्वालिटी इज नो क्वालिटी, नो मेंटेनेंस. सो लेकिन मजबूरी से रहना पड़ता है. कई बार आप प्राइसेस भी ज्यादा ले लेते हैं डिमांड को देख के. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए क्या है, आप ऑनलाइन से कर सकते हैं. देखिए, ई रिजर्वेशन, इलेक्ट्रॉनिकली रिजर्वेशन, रेड बस वगैरह सबको पता है, ऐड, और IRCTC द्वारा ट्रेन के अंदर टिकट्स वगैरह बुकिंग करना है. IRCTC द्वारा फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हो, नहीं तो फ्लाइट साइट्स में भी आप डायरेक्ट गूगल से डालने के बाद उसमें भी पेमेंट है, डायरेक्ट पे कर सकते हो. ओके, सो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल. रिजर्व रूम्स, मीटिंग हॉल्स, टेबल्स इन योर रेस्टोरेंट. बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स वी कैन कंफर्म आवर रिजर्वेशंस. इससे क्या है, इतना नहीं, टिकट बुकिंग ही नहीं है, एक सपोज मीटिंग हॉल्स को बुक करने, एक मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं, तो नहीं तो एक रेस्टोरेंट के अंदर एक पैनल टेबल आपको रिजर्व करना है, कुछ रूम्स रिजर्व करना है, तो ये इत्यादि चीज ये रिजर्वेशन द्वारा हम कर सकते हैं. या यात्रा.com, clear.com, मेक माई ट्रिप, clear.trip.com, या तो IRCTC. These sites are helpful to e-reservation. So friends, e-groups, it is a virtual meeting places for individuals who share the some interests. मतलब इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स नाम से एक फंडा है, इसमें ग्रुपिंग अभी तो आप लोग पता, व्हाट्सएप ग्रुप्स. ओके, सो ई ग्रुप्स आर देयर, they can, people can share their interests. It provides a platform for people to share information on the topics of their interests or messages and photos, albums, etc. ये ई ग्रुप्स का द्वारा लोग अपना इंटरेस्ट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, मैसेजेस वगैरह डाल सकते हैं, फोटोज, एल्बम्स वगैरह मेंटेन कर सकते हैं. Any group typically contains discussion or messages board where members can discuss topics of their choice. The members of an e-group can start a discussion by posting a message on the discussion board. All the other members of this group can view or reply to this particular post. इस e-group में क्या, एक बंदा अपने टॉपिक मैटर डालता रहता है, पोस्ट करता रहता है, फिर इस पोस्ट को देख के बाकी मेंबर्स रिएक्ट करता रहता है, ग्रुप रिप्लाई, कमेंट्स वगैरह जो भी है करता रहता है. फिर फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉग्स भी है. Actually, I want to finish this networking classes, but according to these 1 or 2 things, I want to finish one class, all the protocols. Last time I was also given an announcement, so I reached my time.
I hand over this time to the NIMI because they can allot this slot to other faculties, other teachers. Not only that, I have also another further section, VBA. So now the time is 10:05. So at this moment, I want to conclude this session. इसी वक्त पर इस क्लास को मैं समाप्त करना चाहता हूँ. एक्चुअली आज से मैं इंटरनेट क्लासेस, नेटवर्किंग के क्लासेस समाप्त करने वाले थे, अनाउंसमेंट दिया, लेकिन एक प्रोटोकॉल टॉपिक बचा है. सर्च इंजन्स वगैरह, ये सोशल नेटवर्किंग आप लोगों को पता है, फिर भी अगर एक क्लास में फिक्स किया तो मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा, शेयर करूंगा ये चीज और प्रोटोकॉल्स. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑफ टुडे माय लेक्चर. आज के क्लास में आप लोगों ने जुड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार, फिर मिलते हैं हम कल और एक मीटिंग. आई कैन कम्युनिकेट माय मीटिंग शेड्यूल व्हेन आई फिक्स इट. थैंक यू.